Everybody knows Miss Iyer from the world of finance, from the Kotak. She now heads Kotak Alternate Assets. Started her career with Credence Analytics, and then joining as a fund manager and various roles over Kotak. She rose up the ranks and now heads Kotak Alternate Assets. We'll be talking about what she's doing over there and talking about the markets, and we will be taking up some fireside question rounds with her, जो कि इन्वेस्टर्स हमें पूछते हैं. एंड क्योंकि मैंने मैडम की प्रोफाइल देखी और मैडम की प्रोफाइल में लिखा है कि शी हैज बीन हैंडलिंग इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, सो आई थिंक आई टेक दिस प्रिविलेज टू बम्बार्ड सम क्वेश्चंस ऑन हर. तो सर, तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट यू आर डूइंग एट कोटक अल्टरनेट एसेट्स एंड हाउ दैट इज शेपिंग द एंटायर इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम एंड एड्रेसिंग एचआई इन्वेस्टमेंट्स. Yeah, thanks, Rajat. Firstly, I have been in the asset management space for over 2.5 decades now, all along in mutual funds. Over 2 years back, I've just moved into Kotak Alternates. Basically, and fixed income to kar hi sakte ho, which is something which investors by and large know. But over and above that, agar aapko real estate karna hai, infrastructure karna hai, you want to do high yielding investments on fixed income side, or you want to do something in the private equity route, जो कि listed नहीं है शेयर बाजार में, but they could be listing in the next maybe 2 years, or they have a propensity to probably list down the line. तो जो early stage growth companies जिसको हम बोलते हैं, I think it's a combination of that. So that is the entire investment gamut that I oversee at Kotak Alternates. I have seen one of the AIFs had NSE in their portfolio. And we know that NSE बाहर भी available होता है. Say people can also buy in the OTC market, Swiggy or Zomato or other things. So how going through alternates or an AIF route is different from going it by cherry pick किया जाए? So we do have a pre-IPO fund, जिसको हम बोलते हैं, which is essentially trying to identify some of these late-stage growth companies जो शायद IPO के candidature हो सकते, those things together, and the advantage that you get in a fund route is like any other fund which offers you diversification. So for example, आपने जैसे NSE का नाम लिया, NSE is one of my investee company portfolios. Swiggy अभी list हो चुका है, but Swiggy also we had invested as part of our investee company portfolio in this fund before its listing, जिसको इसीलिए हम उसको pre IPO बोलते हैं, और these are called late stage growth companies. So like a mutual fund offers you diversification of stocks, आप ये unlisted या private equity की दुनिया, so instead of putting all your eggs in one basket, you're okay to diversify. That should be the way to progress, because uncertainty is definitely the name of the game. पे आपको exit आसानी से, so it is better that you do it through the fund route. बिल्कुल सही. और इसमें हमने एक्चुअली एक और चीज देखी, अगर हम 2-3 बड़े नाम दें, जैसे आपका टाटा टेक्नोलॉजीज था, एंड देन वी हैड दिस नजारा फॉर दैट मैटर. ये कुछ ऐसे नाम थे which actually gave exponential returns to investors also. And yes, there had been case of Reliance Retail also, but you know how Reliance goes. So, but having yes, multitude of returns होते हैं through AIF, much of the due diligence जो एक individual investor को करना पड़ता है, वो चीज filter out हो जाए. तो अगर हम 2 सेशंस में आएंगे, बिकॉज जैसे आपके पास टाइम कम है, तो पहला हम ये लेंगे कि आज जो मार्केट फॉल हुआ है, फेड रेट की एक्सपेक्टेशंस की क्या नहीं हुई है. पहले आप बताइए, जो रेट फॉल हुआ है, इन्वेस्टर्स की जो बैंड बजी पड़ी है, उनके लिए अगर 2 शब्द हैं आपके. दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिएगा. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. एक तो ये बात गांठ बांधनी बहुत जरूरी है. एंड अदर थिंग आई वुड से इज दैट देखिए, दुनिया भर में हलचल होती रहेगी, बट इससे अगर आपकी धड़कन, जैसे इन्वेस्टमेंट की धड़कन ऊपर नीचे होने लग गई, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर यू. सो आई वुड से ओवरनाइट जो डेवलपमेंट यूएस में, इसका ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड टू 5 में शायद 50 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस फेड से, क्योंकि वहां पे भी ट्रम्प की पॉलिसीज कैसे इवॉल्व होती है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट crystal ball gaze at the current juncture, but it would suffice to say that they could be potentially inflationary. और अगर वो महंगाई को बढ़ावा दे सकते, तो फिर यूएस में जो रेट कट की जो गति है वो थोड़ी ईज ऑफ होगी, बट ट्रेजेक्ट्री ऑफ रेट कट्स विल स्टिल रिमेन, वेदर इट इज इन यूएस और इंडिया. इंडिया में तो एनीवे हम धीमे पेस की ही एक्सपेक्टेशंस थे, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू, बिकॉज इन इंडिया the dynamics are slightly different. यहाँ पे ग्रोथ स्लोडाउन हल्का सा है, बट इन्फ्लेशन भी हल्का हल्का सा धीमी एक इसके पहले वाली जो रीडिंग थी इन्फ्लेशन की, दैट वाज ऑन द हायर साइड. बट आई थिंक इन जनरल, इफ यू सी द खरीफ आउटपुट हैज बीन गुड, दैट विल हेल्प इन कूलिंग ऑफ
India's food inflation. Okay, great. So अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम like we have seen that in the recent past like the S&P 500 had gone all time high, US markets have been high. अगर किसी ने Nasdaq ETF में डाला है या मेरा ये सेट AI फंड्स में है, डॉलर आज इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है. So with all those things and इंडियन मार्केट इज स्टिल वेरी मच डाउन. लोग ये कह रहे हैं कि क्या इंडियन मार्केट स्टिल ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है? सो अगर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से देखें और वो कहता है कि भाई मैं ग्लोबल ईटीएफ भी लूं इंडिया में भी, तो एक टेक्निकल एलोकेशन के ऊपर आप क्या कहोगे इस बात पे करंट वैल्यूएशंस को लेकर? सो वैल्यूएशंस इंडिया में बात जाननी बहुत जरूरी है. इंडिया में जब भी सौदा लगाओगे आपको यू विल हैव टू एंटर इंडिया एक्सपेंसिव एंड एग्जिट इंडिया एक्सपेंसिव. सो दोनों एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट आपको महंगी ही मिलने की चांसेस ज्यादा है. द रीजन बीइंग दैट इंडिया हैज मोस्ट ऑफन ट्रेडेड एट अ प्रीमियम टू इट्स अदर काउंटरपार्ट्स. और 2024 पुष्पा का टैग अगर किसी को देंगे जो कि फायर एसेट क्लास, वो यूएस ही इट हैज आउटपरफॉर्म वेदर इट्स S&P 500 और Nasdaq, इट आउटपरफॉर्म बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन. हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन दिखाई दे रही है. बट अगर इंडिया के बाहर अगर आपको डिवर्सिफाई करना, सो द वन कैटेगरी और द वन ज्योग्राफी दैट वी स्टिल प्रेफर राइट नाउ इज द यूएस. ग्रेट. एंड अगर हम पिछले 15 दिन के नंबर्स, हमारे पास पीएमआई का नंबर है, सर्विस पीएमआई कंपोजिट में सर्विस ऑब्वियसली हैज ओवरशैडोड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने अभी काफी एक्ट भी किया है. पीएमआई नंबर्स को हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 5.4 आया है, कहने की बात है कि 1% कम है. टेक्निकली ये 16% गिरा है अगर उस तरीके से देखा जाए. और अब जो परसों नंबर्स आए हैं वो है ट्रेड डेफिसिट, जो अब तक का काफी हैवी है. सो अब यहाँ पे दो मेन सवाल आए. अब अगर आप पीएमआई नंबर्स को लेके चले, ट्रेड डेफिसिट को लेके चले, और अगर आप जीडीपी को लेके चले, तो हमें किन सेक्टर्स को आगे देखना चाहिए, पहली बात. और दूसरा, क्या करेंसी हेजिंग हमें करनी चाहिए, करनी है तो कितनी करनी? सो टू पार्ट्स टू योर क्वेश्चन रजत. एक, अगर जिसका पहला हिस्सा है, हमको ना जो भी केपेक्स रिलेटेड थीम्स है वहां पे थोड़ा रुझान ज्यादा लग रहा है. वी लाइक सेक्टर्स वेयर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू पिक अप, एंड हमें लगता है कि फॉर केपेक्स ग्रोथ वी हैव टू सी दैट. सो विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस सारे सेक्टर्स में अगर हमको कोई कैटेगरी चुनना है, सो बीएफएसआई जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, दैट इज सम सेक्टर दैट वी प्रेफर. विद इन दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वी विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स. वी लाइक रियल एस्टेट सेक्टर. क्वार्टर में अगर आपने देखा होगा तो देवर रिकॉर्ड सेल्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेंटरीज, and उनके related sectors is something that we like. जो हम segment से थोड़ा caution रख रहे हैं is the consumption, discretionary consumption का जो है वो उसमें हमको थोड़ा softness दिख रहा है. So वहां पे हम cherry picking करेंगे in terms of opportunities. Healthcare sector is something that we really like. So pharma, wellness, healthcare, ये जो sector है that is going to be slightly more of a decadal theme. So I think some of these are and in light of rupee depreciation, segments like these also can do pretty well. IT में we will be very very selective. It's not that हम en masse जाके खरीद लेंगे, but it will be more a selective pick and play. And it's not necessarily that all these are play on rupee depreciation, but as I said, more to do with government spending and more of a capex recovery cycle. Chennai is confused between going for a direct bonds or accessing the bond markets through the debt mutual funds. So at this juncture, how do you advise on investors in structuring their fixed income portfolio? Direct bonds versus bond portfolios through mutual funds. तो आई वुड से दैट आप डायरेक्ट बॉन्ड में सौदा करिएगा. यू कैन बाय अ 10-year बॉन्ड, यू कैन बाय अ 30-year बॉन्ड. इसकी लिक्विडिटी काफी मजबूत है सेकेंडरी मार्केट में. यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जैसे आप द वे यू डू इट थ्रू इन इक्विटीज, यू कैन डू दैट एज वेल. सो वेदर इट्स अ रिटेल, एचएनआई इन्वेस्टर या जो भी मास एफ्लुएंट है, आप वो रूट अपना सकते हो. ऑन द क्रेडिट साइड वी वुड से यू आर बेटर ऑफ गोइंग थ्रू द एआईएफ रूट, जिसको हम परफॉर्मिंग क्रेडिट बोलते हैं. दैट इज अ वेरी गुड स्पेस एंड वी आर कंफर्टेबल. थोड़ा सा ब्रीफ अप दीजिए कि परफॉर्मिंग क्रेडिट या क्रेडिट रूट क्या होते हैं? हाँ जी, तो ये वो कैटेगरी के फंड्स होते हैं जहां पे कंपनी की क्वालिटी अच्छी है. ऐसा नहीं है कि वो कोई स्ट्रेस में है या डिस्ट्रेस वाली परिस्थिति है.
आसानी से कैपिटल मार्केट द्वारा पैसा रेज करने को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल एक्सप्लोर्ड, नॉट वेरी वेरी हाईली रेटेड। म्यूचुअल फंड्स आमतौर पे क्रेडिट्स में पैसा नहीं लगाते क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे AIFs वो एक माध्यम है जिसके थ्रू आप ये परफॉर्मिंग क्रेडिट या प्राइवेट क्रेडिट में आप भाग ले सकते हो, वे यू कैन जहां पे इनकी ग्रॉस यील्ड्स जो इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली इन द 14 to 16% काइंड ऑफ रेंज। यहाँ पे डिवर्सिफिकेशन जो मिलता है दैट यू विल गेट इट थ्रू द फंड स्ट्रक्चर rather than buying these bonds directly. So I would say that would be a good way to so bonds अगर high quality AAA या sovereign खरीदना है तो you buy it directly. अगर आपको low quality good performing companies में भाग लेना, rated में भाग लेना है, then you are better off doing through the fund route. Fund route, great. And say suppose now we know that there is a fluctuating interest rate scenario and हम expect कर रहे थे कि fall होगा तो long term bonds में हो सकता है थोड़ा सा yield में capital gains के chances बन सकते हैं, but क्योंकि वो थोड़ा सा slow down हो रहा है, now those people who are retirees and have got substantial gratuity corpus and their retirement proceeds, now they want to have a reliable income streams from the fixed income portfolio. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे retail investors? देखिए, एक म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है जिसको हम इक्विटी सेविंग्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सेशन इक्विटी का मिलता है, लेकिन बल्क ऑफ द मनी इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड इनकम, एंड जो उसका पिछला हिस्सा है, द लोअर एंड और द टेल एंड इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। इट विल बी इन द रेंज ऑफ मे बी 15% टू अपवर्ड्स ऑफ 20-25%. सो दिस इज वन कैटेगरी विच दिस सेट ऑफ इन्वेस्टर्स कैन लुक एट। ऑल्सो अगर आपको डेट हाइब्रिड करके एक और कैटेगरी है जो वेरी सिमिलर चीज करती है लेकिन विद अ लेसर एक्सटेंट ऑफ इक्विटी, तो ये जो दो कैटेगरीज है इसको आप देख सकते हो। इसमें पीरियोडिक डिविडेंड का भी ऑप्शन है, जैसे मंथली डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड। ऑफ कोर्स डिविडेंड अश्योर्ड नहीं है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर। ट्रैक रिकॉर्ड को कितने तिमाही में इन्होंने डिविडेंड दिया है, नहीं दिया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जरूर देखिएगा बिफोर यू मेक सच इन्वेस्टमेंट्स। ग्रेट। अगर अब हम यहाँ पे देखें कि एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वी नो दैट दे हैव कॉन्ट्रैक्ट बाय 4.85%। नाउ अब आप ये बताइए कि अगर किसी को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में एक्सपोजर लेना है एट दिस टाइम, एंटिसिपेटिंग कि आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ऐसे कौन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स या कंपनीज हैं, एज आप सेक्टर्स बोले तो ज्यादा बेटर होगा, वी डोंट नीड टू कोट द कंपनी, जिस पे वो फोकस कर सकते? सो देखिए, अगर आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना है तो यू आर बेटर ऑफ डूइंग थीमेटिक फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की एक जो थीम जो खेली जा रही है, दैट इज वन थीम दैट यू कैन ओन। वहां पे आपको सारे कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है भी आपको एक्सपोजर लेने का मौका मिलेगा। सो दैट्स वन थीम विच यू कैन प्ले थ्रू थीमेटिक फंड्स इन म्यूचुअल फंड। एंड अब अगर हम HNI इन्वेस्टर्स की तरफ आते हैं और हम AIF कैटेगरी में आते हैं, वी नो दैट देयर आर टू वेज। वन इज कि ओके, वी कैन हैव अ डायरेक्ट इन AIF एंड देन देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्वड। नाउ देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ AIF3 that is coming, which is targeted at foreign nationals, they're targeted at NRIs and foreign companies and institutional investors, so that they can invest through GIFT City and the proceeds can be taken out, that is totally tax free, so that it can be at par with the global things. AIF कैटेगरी में हम अगले 2 साल 3 साल सबसे ज्यादा कहाँ ट्रैक्शन दे रहे हैं, और कौन से आज के टाइम में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो किस टाइप के AIF कैटेगरीज या ऑप्शंस को वो कर सकता है, बोथ डेट एंड इक्विटी में? देखिए, लिस्टेड इक्विटीज के थ्रू AIF, देन डेफिनेटली कैटेगरी 3 फंड्स में आपको काफी सारा इंटरेस्ट दिखाई देगा। यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ लॉन्चेस आल्सो इन दिस स्पेस फॉर श्योर। एंड कैटेगरी 2 जो फंड्स होते हैं विच आर लार्जली इन द अनलिस्टेड स्पेस, या फिर जैसे मैंने आपको बताया इन हाई यील्डिंग और परफॉर्मिंग क्रेडिट स्पेस, देयर आल्सो वी आर सीइंग रीजनेबल इंटरेस्ट। सो ये जो दो कैटेगरीज है, देयर यू कैन सी प्रीटी मच कमिंग अप ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। गिफ्ट सिटी जो है, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर NRs, दैट्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो टू इन्वेस्ट थ्रू द गिफ्ट सिटी स्ट्रक्चर। Great. Suppose हम as we are entering 2025 and when we are looking at all the volatilities and all, अगर किसी HNI या मास एफ्लुएंट को अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है या देखना है, दो ऐसी चीजें आप बताइए जो उसको एक तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, और अगर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को उसको रिबैलेंस करना रिलेटेड। सीइंग दैट HNI है तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए मरा जा रहा है, ही हैज मनी, हिज ऑब्जेक्टिव इज टू हैव प्रोटेक्ट द वेल्थ एंड इट्स कैपिटल प्रिजर्वेशन विद ग्रोथ, टेंजिबल ग्रोथ। तो आप क्या चाहते हो, कौन से एक तो ध्यान रखें?
A couple of things where they need to keep in mind, probably a war of currencies also, jahan pe dollar supremacy is likely to continue. Lekin there will be pockets of volatility even on the emerging market currency front. तो large cap जो category के funds या stocks होंगे, आप viewers, they will be better poised to withstand the volatility. So अगर आपको 100 रुपया अगर equity में लगाना है, तो we would say 80-20 should be your large cap mid cap bias. That's point number one. और दूसरी चीज, गुड स्टेबिलिटी प्रोवाइडर थ्रू फिक्स्ड इनकम इन योर पोर्टफोलियो। अगले 12 महीने में रेट कट की तो उम्मीद की जा सकती है। उसके साथ साथ देयर कुड बी पोटेंशियल फॉर कैपिटल गेन्स आल्सो इन फिक्स्ड इनकम, जो कि अब तक ठीक ठाक प्ले हुआ है। एंड वी बिलीव दैट द रिटर्न गैप 2024 का जो रिटर्न गैप जो काफी डबल के ऊपर था बिटवीन इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम, दैट कुड सी सम कन्वर्जेंस, यानी इक्विटी से आपको रिटर्न्स को मॉडरेट करने की उम्मीद की जा सकती है। एंड फिक्स्ड इनकम में ऑब्वियसली लो डबल डिजिट्स और हाई सिंगल डिजिट रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है इन कैलेंडर ईयर 2025। Great. Ma'am, this will bring us to the fireside round. Assume that I have given you my 10 crores. Now I am asking you questions, and now since you have been managing the institutional clients, so ये actually real questions हैं जो हम भी सुन रहे हैं मार्केट में और आपने भी अपने लाइफ टाइम में सुना होगा. So I need a quick answers to that. देखिए लक्ष्मी, देखिए मार्केट गिर रहे हैं. अगर मार्केट ऑलरेडी गिर रहे हैं, आप तो मार्केट में हैं, आपको तो पता होगा कि मार्केट गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, आपके पास तो सारा ब्लूमबर्ग है, टर्मिनल्स है, तो आप ये पैसा उठा के शिफ्ट नहीं कर सकते मार्केट में. मेरा हम क्यों वेट कर रहे हैं पैसा स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गिराने के लिए? सो व्हाई डोंट यू जस्ट क्लिक इट, शिफ्ट द मनी आउट? जी. So the answer to that, Rajat, is that there are two people who can predict the absolute top and bottom of the market. They are liar and lucky people. Everyone who are people like you and me should be a disciplined investor in the market. The market is going to be for brave hearts. So अगर आपके पास एक साल का ही केवल view है, then equity markets is not for you. So therefore, I think staggered investments is the way. Downside risk mitigation एक fund manager का काम होता है. लेकिन अगर कोई बोलता है कि बाजार नीचे जाता है और मेरा पोर्टफोलियो इक्विटीज में लगा रहे और केवल ऊपर जाए, देन फॉर यू आर बेटर ऑफ बीइंग इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बिकॉज उसकी जो एनएवी है कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। नहीं, मगर मैं एज एन इन्वेस्टर तो आपसे एक ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. 1% पर मंथ तो हम इक्विटी में निकाल ही सकते हैं फॉलोइंग मार्केट में. 1% per month is not, happy as fund managers, Rajat, we don't have a magical wand. See, what we can do is we can cushion downside. The funds that, we are managing, अगर आप देखो ये market volatility में निफ्टी के ऊपर जो अल्फा है, जो excessive return over निफ्टी या benchmark जिसको हम बोलते हैं, that is the endeavor that a fund manager will deliver. But yes, over a 3-year period, can we have a consistent compounding portfolio? I think 1000 दिन जो है is a good enough time period for any investor to evaluate a fund manager. थोड़ा बहुत आप hedge mechanisms कर सकते हो पोर्टफोलियो में. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम ये conversation 8 महीने या 9 महीने पहले करते, then my portfolio would have been heavily skewed towards mid cap. 60-40 का portfolio था, large versus mid. Today my portfolio is more like 80% large caps and 20% mid cap, and we have actually been able to create or protect the downside of the portfolio. So I think downside protection is very, very critical. And अगर इन्वेस्टर का ये एक्सपेक्टेशन है दैट गिरते बाजार में भी पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट करना है, देन एज आई सेड यू आर बेटर ऑफ बीइंग इन मोर लाइक अ हाइब्रिड पोर्टफोलियो व्हिच इज मोर लाइक 50-50. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट मार्केट्स टू कीप फॉलिंग एंड फंड मैनेजर टू कीप जनरेटिंग पॉजिटिव. नहीं लक्ष्मी, आई एम नॉट हैप्पी विद इट. अगर मुझे ये सब करना है, मैं तो खुद जीरोधा में खुद डाल के मैं करा लूं, देन व्हाई हैव यू हायर्ड यू? कर लीजिएगा. We have got these questions, No, I know that. So I will tell you the answer to that also. अगर आप सेबी का ही डेटा, एज ग्रुप 18, which is the minimum age that you can start doing equity direct investments, to लेके एज ग्रुप 60 plus, average loss has been anywhere between 6,000 rupees to 60,000 rupees. Derivatives में हो या इस पे हो, अगर आप देखोगे तो the retail investor has net only lost money, which is telling you that the hedge funds have actually gained money. क्योंकि किसी का लॉस किसी का फायदा होता है. सो दैट इज हाउ इट्स अ जीरो सम गेम. सो आई थिंक इफ यू आर वेरी वेरी डिसिप्लिन इन्वेस्टर एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट ऑल, देन DIY जैसे हम बोलते, डू इट योरसेल्फ, आप अपना सकते हो. बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एवरी मंथ काइंड ऑफ पॉजिटिव रिटर्न, लगता है आपको ब्रह्मदेव की जरूरत है फंड मैनेजर की. सो दिस ब्रिंग्स टू मी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरैक्टिव सेशन.
आपको नहीं लगता है कि स्टॉक नीचे जाता है कि मेरे को स्टॉप लॉस नहीं, नीचे जैसे किर्लोस्कर ब्रदर बीच में 30% नीचे आ गया था या कुछ आ गया था, फिर छोड़ देते हैं। अब मैं ना स्टॉक स्टॉक लॉस में नहीं काटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉफिट में काटते हैं, स्टॉक वो लॉस वाले स्टॉक्स को ऊपर आने दें। तो इस टाइप के अगर आप इस पे क्या इनपुट देंगे? देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर और दो तरीके के खिलाड़ी होते हैं। वन इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। आप थोड़ा फंडामेंटल लंबी अवधि का व्यू लेकर BMV अप्रोच यानी बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन के हिसाब से आप पैसा लगाते हो। जी। तो इन दैट अगर फंडामेंटली बिजनेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, में कोई अंतर नहीं है एंड वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, तो जब प्राइस पॉइंट घटते हैं देन आप यूजुअली यू विल एड ऑन मोर टू दैट स्टॉक एंड यू विल क्रिएट अ गुड पोजीशन। बट इफ यू आर अ ट्रेडर, ये जो मेरा आंसर है वो काफी अलग होगा। ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ये है। बिल्कुल सो आई बिल्कुल। थिंक यू नीड टू एज अ पर्सन और एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ स्टॉक मार्केट्स टेक अ व्यू कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। ट्रेडर जो है हर एक चीज में ट्रैक करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1% या 1.5% निफ्टी गिरता है, अगर किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वो ट्रेडर होता है। बिल्कुल। इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर होता है, दो कारण होते हैं। या तो गवर्नेंस, अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू आती है, या फिर जो हमने पेशेंट से बिजनेस के आउटलुक के हिसाब से वो सौदा लगाया था, इफ दोस बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, जब कोविड छिड़ा था तो रिटेल फेसिंग जो कंपनीज है उस पर बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। तो एट दैट टाइम एज अ फंड मैनेजर वी एग्जिटेड रिटेल स्टॉक्स। ओके So that is ओके। because there's a fundamental change in view. तो आई थिंक दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आप एज अ स्टॉक मार्केट, और मैं तो कहती हूँ मैं स्टॉक मार्केट की अभी स्टूडेंट हूँ, डिसाइपल ऑफ स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स हरदम आपसे गुरु दक्षिणा लेकर रहेगा। वो डिग्री क्या होगा दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच। एंड आजकल तो सीन ऐसा है कि अगर क्लाइंट को हम कहें कि भाई दीज आर द 5 स्टॉक्स बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, पैराबोलिक SAR, स्टोकेस्टिक्स एंड फिबोनाची सीरीज, ये हमने आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। ही सेज कि यार हमने ये 3 टाटा बाटा शाटा क्यों नहीं लिया? हम नहीं, मैं काफी देर से मार्केट ट्रेंड कर देख रहा हूँ एंड मुझे ये स्टॉक्स लग। द पॉइंट इज कि हैविंग ए कह रहे हैं having a nuclear button in the hand of a monkey and then thinking that he will be very prudent with it. So for मैंने तो when we say to the client, sir देखो we are in a business of making money, नॉट वीडियो गेम्स। मैं यहाँ टीम इंडिया नहीं खरीदा, मैं ऐप के ऊपर के टीम इंडिया खरीदा और फिर सट्टा लगाया आप लोग। बिल्कुल सही बात है रजत। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसको जो हम बोलते हैं नैरेटिव स्टॉक्स, नैरेटिव स्टॉक्स में क्या आपने ये खरीदा, यू नो इट इज मोर लाइक हियरसे नॉइज इन द मार्केट इज हार्डली कुछ एग्जिस्टेंट है। सो दीज आर ऑल टेल टेल साइंस की जो बाजार में जो एक तरीके का जो फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पैसे लगा रहा है शेयर बाजार में वो नेसेसरली विद अंडरस्टैंडिंग से। हेंस आई वुड लाइक टू रियली कॉशन ऑल द इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करते आप रणनीति अपनाते हो और आप जो रणभूमि आपके साथ अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। बिल्कुल। अगर अस्त्र शस्त्र के बगैर जाओगे तो ट्रेडिंग में तो नुकसान होना ही। दैट इज समथिंग व्हिच वो जो बुद्धि कुंद हो जाती है वो ना सुन हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस टुडे एंड आई एम हाईली ओब्लाइज्ड। चले 2020 में 2019 में भी करें, यू हैव बीन विद अस ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड एंड थैंक यू सो मच for highly quantitative, qualified and action oriented insights today. Thank you so much and have a great rest of the day.